Hello dear students, a very good morning all of you. So in this class we're going to discuss about the topic just distribution of chapter social justice. In this chapter we have been understanding the concept of justice, that why justice matters in the current world, why it is important that justice must be delivered, that everyone must be considered in an equal way at the same time, why there is a need for special treatment for someone. So we are understanding this concept in this chapter number 4, that is social justice. In the current topic we're going to discuss about just distribution. Now just means like good distribution, better distribution, and equal distribution, a distribution where justice is there in an equal manner or in a fair manner. The distribution is done. Now, to achieve social justice for us in a society, governments sometimes need to make policies in favorable to some individuals or in favorable to some groups. Now, whether it is between nations or between different groups or individuals within a society, government has to make certain policies, certain programs, so that justice or so that distribution of the resources is done in a fair manner. Now, if there are serious economic or social inequalities in society, now the responsibility of the government comes here, that the section of society or the people of society who are facing the social inequalities, who are facing inequalities which are produced by the society, so therefore government must make such kind of circumstances in which they are given benefits so that they can come at the level playing field and they can compete, and that's how the country grows, that's how everyone grows. So therefore government can provide certain benefits to the needy section of the society. Government can specifically make policies and programs for the needy section. So therefore it might become necessary, if people are facing social inequality, to redistribute some of the important resources of the society, to provide something like a level playing field for the citizens. So इसीलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो सभी के लिए, सिटीजन्स के लिए. तो गवर्नमेंट को जो डिस्ट्रीब्यूट अभी करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मानो सोसाइटी में हमारे पहले यहाँ पे कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में एक सेक्शन जो था सोसाइटी का, उसको शेयर नहीं मिल पाता था रिसोर्सेज में. डेमोक्रेसी आई, नया सेटअप आया, तो अब यहाँ पे एक फेयर, एक मतलब ये अगर फेयर जस्टिस की अगर हम बात करें तो एक फेयर मैनर ये होता है कि हर सेक्शन का जो सोसाइटी कम से कम उसकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो, और वो सेक्शन सोसाइटी का जो सोसाइटी की प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी उनकी वजह से उसे रिसोर्सेज में हिस्सा नहीं मिल पा रहा, तो उसे रिसोर्सेज में हिस्सा मिले, तो उसके लिए अगर फर्दर बेनिफिट्स देने हो सोसाइटी के उस सेक्शन को, तो वो सरकार दे. इससे क्या होगा, इससे वो लोग भी लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाएंगे, और ये सोशल जस्टिस की डिमांड है, नीड है. सो देयरफॉर एक कंट्री में क्या होता है, that people be treated equally in terms of the laws and policies of the society, but also कि लॉ पॉलिसीज के मामले में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए. लेकिन अगर सोसाइटी का एक सेक्शन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो क्या हो, उसको सर्टेन बेनिफिट्स भी दिए जा सकते हैं इक्वली लाने के लिए. तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट सम बेसिक इक्वलिटीज ऑफ लाइफ कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटीज एवरीवन मस्ट एंजॉय. तो बेसिक इक्वालिटी जो है, लाइफ कंडीशंस, अपॉर्चुनिटी को हर कोई एंजॉय करे, तो उसके लिए ये नेसेसरी हो जाता है. अगर सबको ही बेसिक फैसिलिटीज मिलती है जिससे कि वो अपनी ग्रोथ में उसका बहुत बड़ा लाइक एवरीवन गेट्स द बेसिक नेसेसिटीज, सो दैट ऑल ऑफ वी कम एट द लेवल प्लेइंग फील्ड, देन दैट्स हाउ वी ऑल ग्रो. सो देयरफॉर इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर ने क्या किया कि जो सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज थी, like untouchability, like caste system, so therefore the provision of reservation was done, and therefore the abolition of untouchability was done there. untouchability का abolition का provision भी constitution में कर दिया गया. क्यों? क्योंकि वो जो सेक्शन सोसाइटी का है जिसका रिसोर्सेज में हिस्सा नहीं मिल पा रहा था और वो लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं था, दैट सेक्शन वाज नॉट एट द लेवल प्लेइंग फील्ड. क्योंकि करंट अगर राइट इक्वलिटी में सभी के लिए इक्वलिटी रखते, तो वो जो सेक्शन जिसका हिस्सा नहीं था, जिसका शेयर नहीं था रिसोर्सेज में, वो सेक्शन तो और पिछड़ा होता जाता ना. तो इसीलिए सोशल जस्टिस के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया, सोशल जस्टिस के लिए अनटचेबिलिटी रिमूवल का प्रोविजन किया गया. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. व्हाई? टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी एंड टू एंश्योर दैट पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट
have also access to temples, jobs, and basic necessities like water and other facilities. Now, different state governments have also taken some measures to redistribute important resources like land in a fair manner by instituting land reforms. So many state governments have taken steps to reform the state policies, and that's how improve the conditions of the people so that justice is prevailed. Now, difference of opinions on the matter such whether and how to distribute resources and ensure equal access to education and jobs arouse fierce passions in society and even sometimes provoke violence. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश का एग्जांपल ले ले, as far as reservation is concerned, when reservation was like introduced at that time also and afterwards in 1990 जब ओबीसी का प्रोविजन किया गया तो एक वायलेंस लाइक सिचुएशन, द पीपल हु वर बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी दे स्टार्टेड वायलेंस, तो उनको भी समझाना और डिस्प्यूट को फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने सॉर्टेड आउट द डिस्प्यूट. सो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकते हैं, जैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए रिसोर्सेज को, कैसे इक्वल एक्सेस एजुकेशन जॉब्स सोसाइटी में जो है कैसे इक्वल एक्सेस मिले हर सोसाइटी के हर सेक्शन को, और अगर उसमें गवर्नमेंट अगर किसी को लाइक बेनिफिट्स देती है तो इससे क्या हो सकता है, काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एक डिफरेंसेस भी अमर्ज हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट मेथड वी शुड अडॉप्ट टू क्रिएट जस्ट सोसाइटी. एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए, जस्टिस डिलीवर करने के लिए हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए. तो इसकी वजह से ये थ्योरीज जो हैं, जब जॉन रॉल्स की थ्योरी है या प्लाटो की थ्योरी है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें ये समझना होगा. आप रिजर्वेशन के अगेंस्ट हो सकते हैं, बट आपको ये थ्योरी जरूर समझनी होगी कि जस्टिस में वो रिजर्वेशन इसलिए दिया जा रहा है टू एनहेंस द सोशल इक्वालिटी, टू एनहेंस द सोशल जस्टिस एंड टू रिमूव दैट सोशल इनइक्वालिटी, उसको हटाने के लिए. That's why this all theory becomes very important. So as a जैसे for example we have only to remind ourselves about the anger and even violence which has sometimes been aroused by proposals to reserve seats in education institutions or in government employment in our country. So when the reservation provision was done, obviously at that time also there was violence like opposition demonstrations. But being a student of political theory, political science, हमें क्या समझना होगा? We should calmly examine the issues involved in terms of understanding the principle of justice. That why these kind of provisions are done? These kind of provisions are done because there is a proper theory behind this all thing. So if a section is like अगर current distribution में ही होता रहे, like the current distribution of resources has to go on, then in current circumstances the section which are not getting their share in the resources, उनको तो फिर भी शेयर नहीं मिलेगा फिर रिसोर्सेज में, तो वो तो like they will keep on facing the difficulties, they will keep on like facing the problems. That's how socially inequalities बिल्कुल entrenched inequality बन जाएगी उनके लिए. तो इसको हटाने के लिए प्रोविजन किया गया. So therefore we have to calmly examine the issue which are involved in the principle of justice. Like schemes and help the disadvantage we justified in terms of theory of justice. आप खुद बताइए, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है. हमारे देश का एग्जांपल लो, टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया. मेनी स्कीम्स आर ब्रॉट लाइक फॉर बीपीएल, फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस, है ना, फॉर वुमेन, फॉर विडोज, फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. मेनी स्कीम्स आर ब्रॉट. व्हाई दीज आर ब्रॉट? और उसमें कई सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लाइक स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, इंस्टीट्यूशंस में फीस नहीं लगती, कई नॉर्मल फीस लगती है, और कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए जिनमें फीस नहीं लगती. तो ये क्या रीजन है इन सब के पीछे? The reasons are very simple. That everyone gets the benefit. हर किसी को जो है बेनिफिट मिले, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो, जो वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, बिकॉज दैट सेक्शन इज नॉट गेटिंग इट्स शेयर इन द रिसोर्सेज, सो देयरफॉर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन बेनिफिट्स टू मेक देम कम एट द लेवल प्लेइंग फील्ड. एक लेवल प्लेइंग फील्ड में वो आ जाए और फिर आगे वो हर किसी की ग्रोथ हो. तो ऐसी सोसाइटी फिर क्या है? एक जस्ट सोसाइटी बने. नाउ many philosophers have put their theories. One of them was John Rawls, very important
and American scholar, liberal scholar John Broadley Rawls, which was the full name of John Rawls, he wrote a book called A Theory of Justice. उन्होंने एक बुक लिखी थी A Theory of Justice नाम करके, in which he gave the theory of justice. Justice के पीछे की क्या थ्योरी है Rawls के अकॉर्डिंग. That's what we're going to discuss in the next topic, and that is John Rawls' theory of justice. Now, what John Rawls said, John Rawls ने क्या बोला, that if people are asked, अगर लोगों से ऐसा पूछा जाए, to choose the kind of society in which they would like to live, they are likely to choose one in which the rules and organization of society allowed them a privileged position. अगर आपसे ही पूछा जाए कि अच्छा आप ये बताओ कि आप कैसे सोसाइटी में, कैसे समाज में रहना चाहोगे, तो आप कहोगे कि सर समाज मतलब इन जनरल मैनर में अगर हम बात करें तो आप कह दोगे सर इक्वालिटी होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए. लेकिन आपके दिमाग में भी यही होगा कि सर मतलब आप किसी एक सेक्शन से बिलोंग करते हो सोसाइटी के, या एज एन इंडिविजुअल आप कहोगे सर, आप सोचोगे कि हाँ मेरी फैमिली या हमें कुछ प्रिविलेज चीजें मिले, कुछ विशेष अधिकार मिले. हमें हर कोई चाहता है विशेष अधिकार लेना, तो सोसाइटी इस तरीके से तो नहीं चल सकती. सो दे आर लाइकली टू चूज वन इन विच द रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी अलाउड देम ए प्रिविलेज पोजीशन. तो पीपल विल लाइक चूज सच काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच दे आर प्रोवाइडेड प्रिविलेज. प्रिविलेज मीन्स विशेष अधिकार. But we cannot expect everyone to put aside their personal interest. हम हर किसी के पर्सनल इंटरेस्ट या मतलब समाज के लिए सोचो, अपने पर्सनल इंटरेस्ट मत सोचो. ब्रॉडली जनरली तो एक अच्छी चीज है, लेकिन हर किसी का अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं. सो जॉन रॉल्स यही सारी चीज डिफाइन करते हैं अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में. वो कहते हैं कि दैट हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ दे और गुड ऑफ सोसाइटी पे ज्यादा कंसर्न करे, स्पेशली अगर वो बिलीव करते हैं दैट देयर डिसीजन इज गोइंग टू हैव एन इंपैक्ट ऑन द काइंड ऑफ लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज देयर चिल्ड्रन विल हैव इन फ्यूचर. कि अगर उसमें भी ये चीज हो कि उनके जो डिसीजंस हैं, उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या वो जो सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जनरल बेनिफिट की बजाय पर्सनल बेनिफिट में ऑब्वियसली अपनी फैमिली के लिए, जनरेशंस के लिए, खुद के लिए पर्सन ज्यादा कंसर्न होगा. इंडीड we often expect parents to think of and support what is best for their children, but such perspectives cannot form the basis of a theory of justice for a society. Even हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो भी क्या सोचे, वो सपोर्ट करे कि व्हाट इज बेस्ट, कि उनके बच्चों के लिए क्या बेस्ट है. सो एवरी पेरेंट्स, हर कोई पेरेंट्स ऐसा ही सोचता है. लेकिन पेरेंट्स आपको कहते हैं कि हाँ, आपने देखा होगा, आप कहते हो लाइक वी हैव इंटरेस्ट इन दैट. पेरेंट्स बिल्कुल एक अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में, दे सी दैट दिस फील्ड, दिस स्ट्रीम इज बेटर और दैट स्ट्रीम इज बेटर, यू कैन डू दैट, है ना, दैट्स हाउ विल यू विल हैव अ बेटर करियर एंड ऑल. सो हर किसी के इंडिविजुअल की ऑब्वियसली पर्सनल इंटरेस्ट वो सबसे पहले रखता है, बाद में सोसाइटी का इंटरेस्ट. तो वही उसी चीज को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं जॉन रॉल्स. एंड व्हाट जॉन रॉल्स सेड फर्दर, these all perspectives cannot form the basis of theory of justice for a society. How do we reach a decision that would be both fair and just? कि हम पर्सनल इंटरेस्ट साथ साथ में जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है पैरेलली कैसे चलें, और एक फेयर सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी हम कैसे बनाएं. तो जॉन रॉल्स क्या कहते हैं, he gave the answer of this question. He argues that the only way we can arrive at a fair and just rule is if we imagine ourselves to be in a situation in which we have to make decisions about society should be organized. कि अगर हम अपने आप को इमेजिन करें उस सिचुएशन में कि हमें डिसीजन लेना है कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज हो, कैसे बने, किस तरीके की सोसाइटी आप चाहते हो. ऑल्दो लेकिन वी डोंट नो व्हिच पोजीशन वी वुड आवरसेल्व्स ऑक्यूपाई इन दैट सोसाइटी. तो जनरल वे में आप कह सकते हो कि लाइक सोसाइटी इक्वल होनी चाहिए, सोसाइटी में सबके अपने मतलब इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सबको राइट्स मिलने चाहिए. लेकिन आपको एक चीज नहीं पता, आप जब ये चीज बोल रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो सोसाइटी के लिए एज ए होल, कि आप सोसाइटी कैसी ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, कि आपकी पोजीशन क्या होगी सोसाइटी में. अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी पोजीशन क्या होगी सोसाइटी में, तो आप क्या कहोगे, आप भी यही कहोगे सर इक्वालिटी, हमें भी इक्वली ट्रीट हो. लेकिन इकोनॉमिक एंड कॉन्टेक्स्ट में हर कोई चाहता है कि सर मतलब अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, पैसे हो, और है ना, तो मतलब अब अपने आप को बेनिफिट देने लग गए ना इंटरेस्ट में. तो यही जॉन रॉल्स इसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं, देखो, दैट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. फर्स्ट आप ये व्यू करो, इमेजिन करो, लेकिन हमें एक चीज नहीं पता, क्या, कि व्हाट पोजीशन वी विल बी ऑक्यूपाइंग इन द सोसाइटी, दैट इज वी डोंट नो.
सो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वी वुड बी बोर्न इन, सोसाइटी में ऐसी बने तो हम किस तरीके की फैमिली में बोर्न हो, वेदर वी वुड बी बोर्न इन अपर कास्ट और लोअर कास्ट फैमिली, रिच और पुअर, प्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज्ड, इन चीजों को हम नहीं जानते. Rawls argues that if we don't know in this sense who we will be and what options would be available to us in the future society, हमारे पास कोई जानकारी नहीं कि फ्यूचर सोसाइटी में अगर जैसी सोसाइटी हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम, बिकॉज देयर इज नो श्योरिटी कि लाइक अगर डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में तो लाइक कौन से सेक्शन में लाइक आपका जन्म हो, आप डिसएडवांटेज, प्रिविलेज्ड, पुअर सेक्शन, रिच सेक्शन, in which section you will born in, so you don't know the system. We will be likely to support a decision about the rules and organization of that future society which would be fair for all the members. तो हम नहीं जानते फ्यूचर की सोसाइटी के हमारे बारे में, हमारे इंटरेस्ट के बारे में, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सोसाइटी, हम एज ए सोसाइटी के बारे में सोचेंगे सोसाइटी सबको, हर कोई इक्वल होना चाहिए, अपर कास्ट लोअर कास्ट ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, है ना, यूटोपियन सोसाइटी. बट अगर करंट सर्कमस्टेंसेस में अगर आपसे बात की जाए तो आपका जन्म किसी एक सेक्शन में हुआ है, कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ पे, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस सिस्टम में यू बिलोंग टू दैट सेक्शन विच इज लाइक अनटचेबल्स, और दूसरे सेक्शन से, या वो उनसे कुछ और चीज एक्सपेक्ट की जाए. तो ये डिफरेंसेस है ना, क्योंकि करंट सर्कमस्टेंसेस में हम जानते हैं हमारी सिचुएशन, तो इसीलिए हम हमारे इंटरेस्ट को देखेंगे. फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में हम हमारे मतलब वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, तो हम चाहेंगे कि ऐसी सोसाइटी बने. तो रॉल इसको और डिस्क्राइब करते हैं, वो उस थ्योरी को आगे क्या बोलते हैं, इस चीज को वो बोलते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस, जो अभी देखा ना हमने कि आप फ्यूचर में जब आप नहीं जानते कि लाइक आपका जन्म कौन से सोसाइटी में कौन से सेक्शन में होगा, लोअर कास्ट में होगा, अपर कास्ट में होगा, प्रिविलेज में होगा, अंडर प्रिविलेज में होगा, डिसएडवांटेज हो गया, पुअर हो गए, रिच हो गए, तो आप क्या सोचते हो, आप सोसाइटी को एज ए होल देखते हो, आप कहते हो कि लाइक हर कहीं इक्वल हो, सोसाइटी में सब कुछ इक्वल हो ना, सोसाइटी इस तरीके से बने. तो इस सिचुएशन में आप एज ए होल सोसाइटी को कंसिडर करते हो, और ये जो रीजन है जिसमें आप नहीं जानते आपके फ्यूचर के बारे में, इसी को बोला गया है वेल ऑफ इग्नोरेंस. He expects that in such a situation of complete ignorance about our possible position and status in society, हर person क्या decide करेगा, decide in the way they generally do, that is in terms of their own interest. But since no one knows who he would be, what is going to benefit him, each will envisage the future society from the point of view of the worst of. It will be clear to a person who can reason and think for himself that those who are born privileged will enjoy certain special opportunities. But if they have the misfortune of being born in disadvantaged section of society where few opportunities would be available to them, hence it would make sense for each person acting in his or her interest to try to think of rules of organization that will ensure reasonable opportunities to the weaker section. तो हम जब वेल ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, हम हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं जानते, तो वहां पे हम कौन से सेक्शन में हमारा जन्म होगा, तो हम क्या कहते हैं, सोसाइटी बिल्कुल मतलब सबके लिए वर्स्ट ऑफ, वो वर्स्ट ऑफ से सोचता है. फिर आदमी, फिर पर्सन कौन सी सिचुएशन में सोचता है कि शायद हमारा जन्म एक मतलब अनप्रिविलेज्ड सेक्शन में हो सकता है, तो उस सिचुएशन में हमें फेस करनी पड़ेगी क्राइसिस. तो आप एज ए सोसाइटी होल, एज ए सोसाइटी के बेटर के रूप में अपने आप को वर्स्ट मानते हुए, वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में मानते हुए, वनरेबल्स मानते हुए आप डिसीजन लेते हो. That's how you take the decision and think about the society. So the attempt will be see that important resources like education, health, shelter, etc. are available to all persons, even if they are not part of the upper class. तो इन सारे रीजन्स में आपको ये बता रहा है कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, which we have discussed in the last section also, basic necessities must be provided to each and every section of society. हमें current circumstances जो हमें accept करने होंगे that we have caste system prevalent here in India. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग अपने जो है डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं. व्हाइट ब्लैक से अमेरिका में ऐसा नहीं कि डिफरेंसेस कहीं पे नहीं, हर कंट्री में कई सारे डिफरेंसेस, एथनिक डिफरेंसेस होते हैं. इन डिफरेंसेस में डिफरेंसेस रीजन ना बन जाए कि किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेसिक नीड्स भी उसकी फुलफिल ना हो, वो लेवल प्लेइंग फील्ड में ना आए. इसीलिए सबका लेवल प्लेइंग फील्ड में आना बहुत इंपॉर्टेंट है. It is of course not easy to erase our identities and to imagine ourselves under a veil of ignorance. तो हम प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है. लाइक we have to accept this caste system we have to like provide basic necessities and make a kind of level playing field for all the people. और फिर वो एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जहां पे जस्ट सोसाइटी, जस्टिस हो जहां पे हर तरफ. Then it is equally difficult for most people
to be sacrificing and share their good fortune with strangers. तो आज के सेक्शन में सोसाइटी में अगर इफ अ पर्सन बिलोंग टू अपर कास्ट सिस्टम में अगर बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इफ द पीपल आर गेटिंग प्रिविलेजेस, अगर लोगों को विशेष अधिकार मिलते हैं तो कौन अपने विशेष अधिकार छोड़ना चाहेगा? नो वन वुड बी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, है ना, एंड गुड फॉर्च्यून्स फॉर द अदर्स स्ट्रेंजर्स। लेकिन बिकॉज वेल ऑफ इग्नोरेंस में हमें ऐसी सोसाइटी का नहीं पता कि सोसाइटी जो है फ्यूचर में हमारा जन्म, अगर हम बात करें जनरल कंसेप्ट में हम समझ रहे हैं, तो सोसाइटी हम कहते हैं कि हाँ उस डिसीजन में हम अपने आप को वर्स्ट ऑफ मानते हैं कि हाँ सबके लिए इक्वलिटी हो, हर कहीं इक्वालिटी हो। लेकिन अगर पर्सनल इंडिविजुअल्स की बात आ जाती है तो इंटरेस्ट में अगर आप प्रिविलेज सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आप अपने प्रिविलेजेस छोड़ दोगे क्या, लीव कर दोगे क्या? नहीं। दिस इज द थ्योरी, सो दिस हैज टू बी डन अवे। दैट इज व्हाई वी हैबिचुअली एसोसिएट सेल्फ सैक्रिफाइस विद हीरोइज्म। Given these human failings and limitations, it is better for us to think of a framework that does not require extraordinary actions. The merit of the veil of ignorance position is that it expects people to just be their usual rational selves. They are expected to think for themselves and choose what they regard to be in their interest. The pertinent thing, however, is that when they choose under the veil of ignorance, they will find that it is in their interest to think from the position of the worst of. तो वेल ऑफ इग्नोरेंस में हमारे सामने सोसाइटी के वेलबींग की सिचुएशन आ जाती है। आप अपने आप को मानिए, अपने आप को इमेजिन करके देखिए कि आप उस सेक्शन से बिलोंग करते हो जिसको रिसोर्सेज में हिस्सा नहीं मिल पा रहा, तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, प्रिविलेजेस खत्म होने चाहिए। लेकिन अगर आपको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं तो आप वेल ऑफ इग्नोरेंस में ना सोच के अभी करंट सर्कमस्टेंसेस में, करंट सिचुएशन में रहोगे तो आप क्या कहोगे? सर प्रिविलेजेस कौन छोड़ना चाहेगा? विशेष अधिकार अगर सोसाइटी में किसी को मिलते हैं, किसी को पास पावर है, तो वो कौन छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो दैट्स व्हाई दिस वेल ऑफ इग्नोरेंस कांसेप्ट एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। दैट उस कॉन्टेक्स्ट में सोचिए कि अपने आप को वर्स्ट ऑफ मानिए, एंड दैट्स हाउ यू विल कंसीडर मोर अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी को आप कंसीडर ज्यादा करोगे, ठीक है। नाउ वियरिंग द इमेजिन्ड वेल ऑफ इग्नोरेंस इज द फर्स्ट स्टेप in arriving a system of fair laws and policies. It will be evident that rational persons will not only see things from the perspective of the worst of, they will also try to ensure that policies they frame benefit the society as a whole. तो जब आपको उस वेल ऑफ इग्नोरेंस में आप अपने आप को वर्स्ट ऑफ मानोगे, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ एट द प्लेस ऑफ द underprivileged or unprivileged section, then you will say that the privilege must not be there, and as you will think of society as a whole, that what is better for the society. You will not consider about the individual. आप अपने इंटरेस्ट को नहीं देखोगे, फिर वहां पे आप एज ए सोसाइटी को समझोगे फिर। So that's why this a theory of justice is very very important, and Rawls gave a very interesting and very important philosophical views behind the social justice. उसमें veil of ignorance concept बहुत interesting है। Both things have to go hand in hand, since no one knows what position they will occupy in the future society. Each will seek rules that protect them in case they happen to be born in among the worst of. But it would make sense if they also try to ensure that their chosen policy does not also make those who are better off. It is also possible. So that's how everyone, that was the importance of this a theory of justice. In the book, John Rawls gave a very interesting veil of ignorance concept. Now, both things, we have to think ourselves in the worst of. That's how we think about the society as a whole. Now, it would make sense if they also try to ensure that their chosen policy does not also make those who are better off weaker. ये भी बहुत important ध्यान रखना. Those who are better off weaker, because it is also possible that they could be born into a privileged position in the future society. Therefore, it would be in the interest of all that society as a whole should benefit from the rules and policies that are decided, and not just any particular section. So therefore, it is not like हम यहाँ पे ये करते हैं डिस्कस नहीं करें कि अगर कोई प्रिविलेज सेक्शन है, इनइक्वलिटी खत्म होनी चाहिए, लेकिन प्रिविलेज सेक्शन को आप ऐसा कहोगे नहीं वो वीकर मतलब कंडीशंस में आए, वो दे आल्सो फेस दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस डिस्क्रिमिनेशन, नो, फिर तो आप दोबारा लाइक यू आर क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वल सोसाइटी. दैट इज नॉट आवर कंसेप्ट. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट दोज हु आर बेटर ऑफ वीकर, है ना, we have to ensure that the chosen policy does not also make that those who are better off weaker.
जो बेटर ऑफ है उनको वीकर कर दे, ऐसी पॉलिसी हम नहीं चाहते। हम ऐसी पॉलिसी चाहते हैं कि जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, दैट रूल एंड पॉलिसीज दैट आर डिसाइडेड नॉट जस्ट फॉर ओनली पर्टिकुलर सेक्शन, फॉर एवरी सेक्शन। अगर ऐसी फेयरनेस होगी, दैट वुड बी द आउटकम ऑफ रैशनल एक्शन, not benevolence or generosity. So that's how the fairness will come, and that's how the policy will be based on the rational action. The action, the steps which are taken, they are taken for a betterment of the society. So Rawls therefore argues that rational thinking, not morality, could lead us to be fair and judge impartially regarding how to distribute the benefits and burdens of a society. In his example, there are no goals or norms of morality that are given to us in advance, and we remain free to determine what is best for ourselves. It is this belief which makes Rawls' theory an important and compelling way to approach the question of fairness and justice. तो Rawls आपको सिर्फ एक veil of ignorance concept में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं that the think of as worst of. In that situation, you will think about like betterment of the society. But वो यहाँ पे ये भी deny नहीं कर रहे हैं कि आप रियलिस्टिक होके लाइक आपको रोक रहे हैं, you all are free to like determine the society, what society you want, but in the veil of ignorance you will think better for the society as a whole. Okay, so this was the theory of justice, the concept given by John Rawls in his book A Theory of Justice. So I expect that we have covered the John Rawls theory in a good way, and the just distribution concept. In the next class, we're going to further discuss the next topic of this chapter. Thank you very much, everyone.